given by introduction of the program will be given by Amita Kotecha Shah. Let me just give you a brief introduction about her. Mrs. Mittal Kotecha Shah is the Joint Executive Treasury and Chief Executive Officer of Project Life, a leader of strength, clarity, and vision. She is recognized for her articulate leadership, strategic foresight, and deep rooted commitment to social transformation. Her leadership has earned Project Life notable recognition, including the state level Best NGO Award in 2010 and 11 for exemplary service in women empowerment. She currently serves as a chairperson of Gujarat State Non-Residential Gujaratis Foundation Center, that is NRG, and also a vice chairperson of Indian Yoga Association. Welcome, Mittalji. Namaskar. Thank you, Bhaktiben, for your kind introduction. So, Namaskar to all esteemed dignitaries, respected gurus, and dear participants joining in this virtual celebration of the 7th Foundation Day of Indian Yoga Association Gujarat Chapter. As the Bhagavad Gita profoundly reminds us, yoga is the journey of the self, through the self, and to the self. With this timeless wisdom, I extend a heartfelt welcome to each one of you and express my sincere gratitude for your gracious presence. It's truly a matter of honor and privilege for us to share this distinguished platform with such eminent ambassadors of yoga. Indian Yoga Association Gujarat Chapter, established in Ahmedabad in 2019, and it was envisioned as a platform to present yoga in a comprehensive, structured, and an inclusive manner. Since its inception, the Gujarat chapter has remained unwavering in its commitment to the core objectives of Indian Yoga Association, carrying the legacy forward. We gather today with a renewed perspective and a unifying thought, Yog Ek, Dhara Anek, one timeless stream of yoga expressed through many paths, practices, and dimensions. It gives us immense joy to share that the Gujarat chapter has successfully completed its 6 enriching years, and is now stepping into its 7th year of service and growth. Throughout this journey, we have been established and blessed with the constant guidance, encouragement, and support from our dear Sri Subodh Tiwari ji, Secretary General of Indian Yoga Association, and the valuable guidance and direction from IYA, especially in organizing Yog Mahotsav, IDY programs, etc. Here I express my deep gratitude for all the revered gurus whose blessings enabled us to sustain our mission and progress even during the most challenging times of the pandemic. With humility, we seek the same inspiration and blessings as we move forward. We are deeply honored today by the gracious presence of Swami Nikhileshwaranand ji, Adhyaksh of Sri Ramakrishna Ashram, Rajkot. Namaskar, Swamiji. I also extend my warm welcome to Shailesh ji, Chairperson, and our dear Acharya Birju Maharaj, and the respected committee members of IYA Gujarat Chapter. योग की व्यापकता आज सर्वथा सिद्ध है। योग हमारी सनातन संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है और यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि आज की युवा पीढ़ी इस परंपरा को पूरा उत्साह और प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ा रही है। योग को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का युवाओं की भूमिका का निसंदेह जो उनका निसंदेह है वो अत्यंत सराहनीय है।
Yet, our responsibility does not end here. While yoga has gained widespread recognition in the urban spaces, its true impact lies in reaching the grassroots. In the spirit, Yoga Ek Dhara Anek, we must collectively ensure that the essence of yoga flows seamlessly from cities to villages and touching every life. Through coordinated efforts of the Indian Yoga Association and its state chapters, this shared vision can be transformed into meaningful and measurable impact on a nation scale. We look forward to your continued guidance, supports, and blessings so that Gujarat chapter may further expand its service and contribution to the ever evolving field of yoga. Once again, I warmly welcome you all. Let's all take a collective pledge to walk together on this unified stream of yoga and illuminate every corner of India with its transformative power. Thank you. Namaskar. Thank you, Mikal ji, for a wonderful, insightful talk about yoga and what yoga truly is and what it matters to us. Still, lot of work to do by all of us on a urban and on a rural area. Let's go further and let's now listen to the Salesh Bhai about the Gujarat chapter, what Gujarat chapter has done in last 6 years. Let me give a brief introduction about Shailesh Ji Rathod. Shailesh Ji Rathod has been into this field for last 30 years. He is a senior international yoga teacher from Art of Living. He is currently also a vice chairperson with Indian Yoga Association Gujarat chapter. He has in-depth experience in conducting yoga tutoring with a large crowd. Recently, he conducted 1,100 participants in Morbi. He is also an expert in Ayurveda and naturopathy. He is a national trainer, corporate trainer, writer, and social worker. He has given his whole life for seva and humanity. Welcome, Shailesh ji. Namaste. नमस्कार स्वामी जी, नमस्कार। इंडियन योग एसोसिएशन गुजरात के मेंबर्स हैं और जो लोग इस कन्वर्सेशन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं शैलेश आप सबका स्वागत करता हूं। इंडियन योग एसोसिएशन की स्थापना इसी उद्देश्य के साथ हुई थी कि सभी योग की जो परंपराएं हैं, सभी योग के जो प्रवाह है, वो एकत्रित हो जाए। हमेशा से ही योग का लक्ष्य रहा है दुख निवारण। हमेशा से योग का लक्ष्य रहा है समाज और समाज में जो हमारे लोग हैं उनका उत्थान करना, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। योग का एक लक्ष्य हमेशा से रहा है और इस लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए इंडियन योग एसोसिएशन की स्थापना हुई। आज ही के दिन, 6 साल पहले इंडियन योग एसोसिएशन की गुजरात शाखा, गुजरात की स्थापना हुई और उसी के सेलिब्रेशन में हम लोग मिले। बात करें अगर ये 6 साल की हमारी जो जर्नी है, तो यहाँ आचार्य बिरजू महाराज जी मौजूद हैं जो गुजरात को लीड करते थे एज ए चेयरपर्सन, और आज भी वो हमें मार्गदर्शक के रूप में लीड कर रहे हैं। बात करें यहाँ मित्तल शाह कोटेजा जी का, जिनका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी भक्ति बहन ने दिया, और जितने भी टीम के जो मेंबर्स हैं, इन 6 सालों में गुजरात चैप्टर ने हमेशा से अपने लक्ष्य को हमेशा से प्राप्त करने की कोशिश की, लगातार मेहनत की। जितने भी मेंबर्स हैं वो अपनी अपनी शाखाओं में योग के बड़े निपुण हैं, निपुण रहे हैं, लेकिन अपनी शाखाओं में जो योग के लिए, समाज के लिए योगदान देना होता है, उसको चालू रखते हुए इंडियन योग एसोसिएशन गुजरात चैप्टर और गुजरात चैप्टर के द्वारा लोगों के उत्थान के लिए बहुत काम किया गया। इसी साल हमने एक बहुत बड़ा राजकोट में प्रोग्राम किया, जहां
हाँ, 700 से लेके 800 लोग जुड़े थे हमारे साथ, और योग के अलग अलग गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया उन्होंने। इसी साल, जैसे अभी भक्ति जी ने बताया, इंडियन योग एसोसिएशन और आर्ट ऑफ लिविंग के कोलैबोरेशन में मोरबी में 1100 से ज्यादा लोग जुड़े थे योगाभ्यास में, और जहां उन्होंने विविधता में एकता का दर्शन भी किया। इस साल से पहले कई ऐसे प्रोग्राम कंडक्ट हुए, कई ऐसे नॉलेज सेशन कंडक्ट हुए, ऑनलाइन ऑफलाइन, स्पेशली जैसे मित्तल जी ने बताया पेंडेमिक था। हाँ, जब पूरा समाज एक दुख से निकल रहा था, एक दर्द से गुजर रहा था, तब भी गुजरात चैप्टर ने अपनी इस जिम्मेदारी को निभाया था और लोगों को योग का ज्ञान ऑनलाइन माध्यम से दिया था, अलग अलग गुरुओं को इनवाइट करके। सो ये 6 साल का जर्नी हमारे लिए समाज, सोसाइटी और सभी हमारे जो देशवासी है, उनके जीवन में कुछ नया देने का रहा। ये 6 साल का हमारा सफर हमारे सबके एक दूसरे के यौगिक परंपराओं को समझने का रहा, और उस समझ को पैदा करके लोक उत्थान में जुड़ने का रहा। टीम में अलग अलग लोग आते रहे, जाते रहे, लेकिन लक्ष्य हमेशा एक रहा। जैसे हम, आज का हमारा टॉपिक है योग एक, धाराएं अनेक, तो अलग अलग धाराओं से आए हुए जितने भी गुजरात चैप्टर के लोग हैं, उनका लक्ष्य एक ही रहा, समाज को हम कुछ दे पाए, एक 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 हम आईना दिखा पाए कि सभी गुरु एकत्रित होके कहीं ना कहीं समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। सो यहाँ मैं गुजरात चैप्टर को बधाइयां भी दूंगा, और जो श्रोतागण है जो सुन रहे हैं उनको कहूंगा कि गुजरात चैप्टर कल भी लगा था, आज भी लगा है, और इंडियन योग एसोसिएशन गुजरात चैप्टर कल भी इस लक्ष्य के साथ लगा है कि हम सब इकट्ठा हैं, एकत्रित हैं, और एकत्रित करके योग का विकास कर रहे हैं। योग का विकास करके कहीं ना कहीं समाज में लोगों का उत्थान का कार्य कर रहे हैं। बहुत खूबी से किया है। आज सेलिब्रेट भी उसी का है, सेलिब्रेशन भी उसी का है, और बहुत खूबी से हम करने वाले हैं। तो मैं यहाँ अनुरोध करूंगा सबसे कि इंडियन योग एसोसिएशन गुजरात चैप्टर से आप जुड़े रहें, आप यहाँ आए, यहाँ मेंबर बने, और हमारे साथ हमारा जो लक्ष्य है ना, उसको साधने में हमारे साथ चलते जाएं, हमारा मदद करते जाएं। थैंक यू। जय गुरुदेव। शैलेशी, जय गुरुदेव जी। बिल्कुल, हम सालों से शुरू से गुजरात चैप्टर से जुड़े हुए हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि हम सब अलग अलग धारा से आ रहे हैं, फिर भी हम सब एक साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा गोल एक है कि योग को फैलाओ, ज्यादा से ज्यादा लोग योग को जाने, पहचाने, और उसका जिंदगी में उसके लिए उसका उसमें इंक्लूड करें। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द मेन, हमारे जो हमारे मेन हमारे आज के वक्ता है, उनके बारे में मैं कुछ थोड़ा बताऊंगी। एंड ही हैज सिलेक्टेड अ ब्यूटीफुल टॉपिक। स्वामी श्री निखिलेशानंद जी को मेरा प्रणाम, सदा प्रणाम। द टॉपिक इज आधुनिक मानव के लिए समन्वय, आधुनिक मानव के लिए समन्वय समन्वयात्मक योगा। आधुनिक मानव के लिए समन्वयात्मक योगा। मैं थोड़ा हल्का सा उनका इंट्रोडक्शन करूंगी। स्वामी निखिलेश्वरानंद वर्तमान में श्री रामकृष्ण आश्रम राजकोट में प्रमुख है, जो बेलूर मठ स्थित रामकृष्ण मठ की एक शाखा है। रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन, ये प्रतिष्ठित विश्वव्यापी संस्था स्वामी श्री विवेकानंद द्वारा लगभग 125 साल पूर्व स्थापित की गई थी। उनकी मेन ब्रांच बंगाल में है। उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग की स्नातक तथा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है। कुछ समय तक उन्होंने प्रबंधन सलाहकार के रूप में कार्य किया। तत्पश्चात संसार का त्याग करके इन 1976 में उन्होंने वो सन्यासी बने
और रामकृष्ण मिशन के साथ जुड़ गए। उन्होंने रांची में ग्रामीण एवं जनजातीय विकास परियोजना का मार्गदर्शन भी किया है, जिसे देश के सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वे मासिक पत्रिका श्री रामकृष्ण ज्योति के संपादक भी रहे हैं। उन्होंने भूकंप पुनरावर्तन परियोजना में नेतृत्व किया तथा विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यू एजुकेशन एंड कल्चर की स्थापना भी की और दोनों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देश विदेश में व्यापक यात्राओं के माध्यम से वे औद्योगिक प्रतिष्ठानों, प्रबंधन संस्थानों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में वेदांत के सार्वभौमिक संदेश को प्रचार प्रसार करते रहे हैं। एक प्रभावशाली वक्ता और विपुल लेखक के रूप में उनकी अनेक चर्चित एवं बहुत प्रशंसित रचनाएं प्रकाशित हो चुकी है। वी ऑल इंडियन योगा एसोसिएशन गुजरात चैप्टर से स्वामी जी आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हरिओम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। All the respected members of Indian Yoga Association Gujarat chapter and others who are online. At the outset, I would like to congratulate the Gujarat chapter of Indian Yoga Association for all the noble activities that have been carried out by them for last 6 years, and also for organizing this virtual celebration of 7th Foundation Day through this program. And I'm thankful to the organizers for giving me this opportunity of sharing my thoughts with you. I've been told to speak in Hindi. मैं इसीलिए हिंदी में बातें करूंगा और विषय जो दिया गया है वो है आधुनिक मानव के लिए समन्वयात्मक योग। आधुनिक मानव शांति की खोज में है। हम सब जानते हैं, सभी लोग शांति की खोज में, और शांति के लिए बहुत प्रयत्न भी करते हैं, पर शांति मिलती नहीं है। बहुत प्रयत्न करते हैं सभी लोग, और किसके अभी हैप्पीनेस इंडस्ट्री इज द 5th लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। ये शांति, सुख शांति प्राप्त करने के मार्ग बताने के लिए सेमिनार्स वगैरह बहुत सारे और भी कई कॉन्फ्रेंसेस सब होती रहती है, परंतु उसके बावजूद भी आधुनिक मानव शांति की खोज में उसका एकमात्र कारण यह है कि हम गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं। हम सब ढूंढ रहे हैं सुख शांति को बाहर के पदार्थों में, लेटेस्ट मॉडल कार, लेटेस्ट मॉडल मोबाइल, लेटेस्ट मॉडल मकान, परंतु शास्त्रों में क्या कहा गया? शास्त्रों में कहा गया कि शाश्वत सुख और शाश्वत शांति का स्रोत हम सबके भीतर विद्यमान है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान तम आत्मस्तम येनु पश्यन्ति धीरा तेषाम शांति शाश्वती नेतरेषाम। जो इस परमात्मा को दर्शन कर लेता है, जो धीर व्यक्ति, जो परम चैतन्य तत्व है, उसी को परम शांति मिलती है, अन्य किसी को नहीं। तो हमारे इसी वेदांत के संदेश को ले जाने के लिए स्वामी विवेकानंद सारे विश्व में फैलाने के लिए अमेरिका में गए थे। आपको मालूम है 11 सितंबर 1893 को उन्होंने शिकागो विश्व धर्म सभा में अपना ऐतिहासिक भाषण दिया, और वे इतने प्रसिद्ध हुए कि उनको 4 वर्षों तक और वहां पर रह जाना पड़ा अमेरिका में। और उस समय उन्होंने अमेरिका को एक बहुत बड़ा उपहार दिया, जो उपहार आज समस्त विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह था शाश्वत सुख, शाश्वत शांति, और दैनंदिन जीवन में सुख शांति कैसे प्राप्त करें, उसके उपाय। और उसके उपाय के रूप में उन्होंने
समन्वयात्मक योग की भेंट दी विश्व को। तो स्वामी विवेकानंद न केवल युगाचार्य थे, योगाचार्य भी थे, पर स्वामी विवेकानंद के अनुसार जो योग की परिभाषा वह यह है कि युज धातु से योग आता है। योग का मतलब होता है मिलना। योग मतलब आत्मा और परमात्मा का मिलन, वैयक्तिक चेतना का वैश्विक चेतना के साथ जो संयोग है उसको उन्होंने योग कहा। और हमारे भीतर में यह जो परमात्मा का के साथ जो योग होना, वैश्विक चेतना के साथ वैयक्तिक चेतना का जो योग होना, वही हमें अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद प्रदान कर सकता है। और विशेष बात यह है कि जब हम उसके उपायों के बारे में सोचते हैं तो इन उपायों की जब हम उसका अवलंबन लेते हैं तो दैनंदिन जीवन में भी सुख शांति मिल जाती है। तो ये जो 4 योग उन्होंने बताए, तो राजयोग के प्रारंभ में ही उन्होंने वेदांत का सारा सार, योग का सारा सार, पूरा सारांश उन्होंने दे दिया। क्या? Each soul is potentially divine. Each soul is potentially divine. The goal of human life is to manifest this divinity within by controlling nature, external and internal. Do this either by work or worship or psychic control or philosophy, by one or more or all of these, and be free. This is the whole of religion. Doctrines, dogmas, rituals, temples, churches, mosques are but secondary details. तो सारा पूरे धर्म का सार दे दिया, वेदांत का सार दे दिया, योग का सार दे दिया। उन्होंने क्या कहा? प्रत्येक मनुष्य में दिव्यता सुषुप्त रूप से विराजमान है। मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य है उस अंतर्निहित दिव्यता को अभिव्यक्त करना, और उसके 4 उपाय उन्होंने बताए: राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। 1, 2, 3 अथवा 4 उनको मिला करके उसका नाम दिया समन्वयात्मक योग। चारों का समन्वय यदि हम करते हैं अपने जीवन में तो न केवल हमें शाश्वत सुख, शाश्वत शांति मिलेगी, दैनंदिन जीवन में भी सुख शांति मिलेगी। यह पथ उन्होंने बताया। तो राजयोग जैसा हम जानते हैं उसके ऊपर उन्होंने पूरा उसका बहुत ही सुंदर व्याख्या की है। इंग्लिश में पहली बार इंग्लिश में व्याख्या हुई है पतंजलि योग सूत्र की, वो स्वामी विवेकानंद ने की। और वो उसमें क्या कहा उन्होंने? अष्टांग योग की जो बात है उसी को उन्होंने अच्छी तरह समझाया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि जैसा हम जानते हैं। और यम के बारे में बताया, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अहिंसा। और नियम भी शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। इसके बारे में आधुनिक मानव के लिए उसका क्या अर्थ हो सकता है बताया। और ये यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, तो ये समाधि योग चित्तवृत्ति निरोध की जो डेफिनेशन दी पतंजलि योग सूत्र में, यह मानो समाधि की अवस्था, यह जो अंतिम अवस्था। और उन्होंने उसका सुंदर समन्वय कर दिया वेदांत के साथ भी। वेदांत में जो मुक्ति या मोक्ष की जो आकांक्षा है और ये समाधि की आकांक्षा 2 अलग नहीं है। दोनों अवस्था में, सभी अवस्था में वह अंतिम अवस्था ऐसी जहां पर अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद का वह अनुभव होता है। तो राजयोग कहा। फिर कहा भक्ति योग। भक्ति योग जो है, राजयोग में हमें साधना करनी है, यम और नियम का पालन करना है, साथ साथ में आसन की सिद्धि करनी है, प्राणायाम करना है। तो आजकल हम जो अधिकांश लोग ऐसा समझते हैं कि योग मतलब होता है योगासन, पर वह एक बहुत सीमित उसका अर्थ है। योग एक जीवन की कला है जो हमें अंतिम उद्देश्य तक पहुंचा देती है। न केवल हमें दैनिक जीवन में शांति देता है योग, पर अनंत शांति भी प्रदान करता है। ये सचमुच का योग है। तो योगासन उसका एक भाग है, शारीरिक स्वास्थ्य कर रखने के लिए बहुत आवश्यक है। तो ये आसन के बाद में आता है प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, इंद्रिय संयम, फिर धारणा, किसी एक प्रत्यय पर अपने मन को एकाग्र करना। यही धारणा 12 सेकंड तक यदि हम लगातार अपने मन को एकाग्र कर सके एक ही प्रत्यय पर, तो वह फिर हो जाता है ध्यान, धारणा। और जब वो हो जाता 12 × 12 सेकंड 144 सेकंड तक होता है तो वो ध्यान बनता है। और 144 सेकंड × 12 सेकंड लगभग आधा घंटा यदि
बिना किसी प्रतिरोध के अविच्छिन्न रूप से यदि किसी प्रत्यय पर हम मन को एकाग्र कर सकते हैं तो वो समाधि होती है। तो यह जो क्रम है उसमें ध्यान की जो हमको जो ध्यान का अभ्यास करना है वो राजयोग का अभ्यास है। भक्ति योग है जहां पर ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, श्लोक स्तोत्र पाठ करते हैं। ये सब भक्ति योग का एक मार्ग है। ज्ञान मार्ग, श्रवण मनन निधिध्यासन, यह मार्ग की ये 3 चीजें हैं जहां पर कि हम उसको आधुनिक भाषा में यह कह सकते हैं कि जो सद असद विचार करना, कौन सा नित्य है कौन सा अनित्य है, नित्यानित्य वस्तु विवेक विचार, जिसको विवेक चूड़ामणि में कहा। तो नित्य क्या है अनित्य क्या है उसके पर विचार करके नित्य को लेना, अनित्य को छोड़ना, और उसके बारे में उस वो जो स्वरूप है उस परमात्मा के स्वरूप पर चिंतन करना, यह है ज्ञान योग। और चौथा है कर्मयोग। स्वामी विवेकानंद का यह कहना था कि आधुनिक मानव के लिए कर्मयोग सबसे ज्यादा महत्व का इसलिए है क्योंकि अभी हमारी जो परिस्थिति में कर्म को छोड़ नहीं सकते, आजीविका के लिए भी हमको कर्म करना पड़ेगा, चारों ओर दुखी दुख है उसको दूर करने के लिए भी हमें सेवा कार्य करने पड़ेंगे। ये कर्म योग को उन्होंने प्रोमिनेंस दिया आज के आधुनिक युग के लिए। और कर्म योग का मतलब क्या है? कर्म योग का मतलब होता है जो भी काम करते हैं वो निस्वार्थता पूर्वक करें और अनासक्ति पूर्वक करें तो वह कर्म कर्मयोग बन जाता है। मतलब उस प्रकार के कर्म करने से वो कर्म हमें बांधता नहीं है। कोई भी कर्म हम करेंगे तो बांधेगा, अच्छा काम करेंगे तो अच्छा वो भी बांधेगा, बुरा काम करेंगे बुरा वो भी बांधेगा, परंतु यदि उसको निस्वार्थता पूर्वक अनासक्ति पूर्वक किया जाए तो वही कर्मयोग बन जाता है, ईश्वर प्राप्ति का माध्यम बन जाता है। तो ऐसे स्वामी विवेकानंद ने कहा ये 4 योग हैं, उसमें से आपको जो अच्छा लगे करो। पर स्वामी विवेकानंद को पूछा गया अच्छा आपने कौन सा योग लिया ये हमको बताइए। स्वामी विवेकानंद ने कहा हमने चारों योग को मिला दिया, समन्वयात्मक योग। उसमें क्या है? फायदा ही फायदा है। चारों योगों के फायदे एक साथ मिल जाते हैं। और चारों योगों में जो कुछ कुछ कमियां हैं, कमी तो योग में नहीं है पर हमारे खुद की कमियों के कारण उसमें कुछ हमको कठिनाई आती है, वो कठिनाई दूर हो जाएगी। जैसे कि राजयोग शॉर्टकट है, रॉयल पाथ है। तो राजयोग की कोई जल्दी से अपना पहुंचना, समाधि लगाना है। अभी इंस्टेंट का जमाना, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट समाधि, सबको इंस्टेंट समाधि चाहिए, देने वाले भी है लेने वाले भी है, ठगने वाले भी हैं। अब वो इंस्टेंट समाधि के चक्कर में कभी ध्यान किया नहीं, शुरू से 8-10 घंटा ध्यान करना शुरू किया, सीधा मेंटल हॉस्पिटल। तो क्या करें? स्वामी विवेकानंद क्या बोलते हैं, अरे उसमें थोड़ा सेवा कर दो, सुबह शाम ध्यान करो और सारा दिन में सेवा का काम करो, कर्मयोग करो, निस्वार्थ पर जो तुम्हारा जो कर्तव्य कर्म करो, स्वधर्म का पालन करो पर अनासक्ति पूर्वक करो, तो वो भी योग है। तो उसमें कर्मयोग को मिला दो। अब कर्मयोग केवल मान लो कर्मयोग करना चाहे तो अहंकार आएगा, मैंने इतना अच्छा काम किया, या फिर यदि काम सफल नहीं हुआ तो निराशा आएगी, हताशा आएगी। तो क्या करना है? कर्मयोग में राजयोग को मिला दो। और कर्मयोग में जब हमको बहुत ज्यादा ये मिलता है, प्रशंसा मिलती है, तब ये कहो मैंने नहीं किया, ईश्वर की कृपा से मिला है, भक्ति योग को मिला दो, तो ये कर्मयोग का जहर चला जाएगा। पर भक्ति योग करते समय क्या होते हैं, लोग इतने सेंटिमेंटल हो जाते हैं, वो भावनाओं में बह जाते हैं, इसलिए बोलते हैं थोड़ा ज्ञान योग डाल दो उसमें। ज्ञान योग से बुद्धि बुद्धि काम करेगी, नहीं तो हम लोग जब धर्म का काम जब करते हैं बुद्धि को अलग रख देते हैं, उसके कारण ही ठगना सब होता है। क्यों लोग ठगाते हैं? क्योंकि ठगने वाले जानते हैं कि धर्म के नाम पर जब आएगा तो ये लोग अपना बुद्धि को अलग रख देंगे। नहीं, उसमें बुद्धि को रखो, ज्ञान योग को मिला दो, तो कोई तुमको ठग नहीं पाएगा। केवल ज्ञान योग शुष्क है तो शॉर्टकट, परंतु शुष्क है, तो उसमें भक्ति योग को मिला दो। तो इस प्रकार से चारों योगों का समन्वय करने से चारों योगों की जो कठिनाइयां हैं वो दूर हो जाएगी, और चारों योगों को एक साथ करने से हमको और जल्दी से यह जो उसका जो अंतिम उद्देश्य है वो प्राप्त हो जाएगा। और स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में हम देखते हैं कि उन्होंने स्वयं उसको करके दिखाया। उनके समान ज्ञान किसके पास है? कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद 9 वॉल्यूम्स, 9 वॉल्यूम आप देखें, 9 खंड हैं स्वामी विवेकानंद साहित्य के, कितना ज्ञान भरा हुआ है। तो ज्ञान योगी तो थे ही वे। और राजयोगी वे कितनी बार समाधि में चले जाते थे, और
बचपन से ही ध्यान योगी थे, एकदम बचपन में। बिले उनका नाम था, बिलेश्वर बिले। बच्चों खेल क्या खेलते थे? ध्यान का खेल खेलते थे। और ध्यान का खेल खेलते समय एक बार बहुत बड़ा नाग आया, पर वो छोटा बच्चा बिले ध्यान में मग्न है, घर वाले सब चिल्लाने लगे, पर उसके ऊपर कोई असर नहीं। छोटे बचपन से ही ध्यान सिद्ध थे। और उन्होंने अंतिम शब्द, अंतिम वाक्य जो बोला 4 जुलाई 1902 को, 39 वर्ष की उम्र में जब उन्होंने महासमाधि ली रात को 9 बजे, उसके कुछ समय पहले उन्होंने जो अंतिम वाक्य कहा था, गो एंड मेडिटेट टिल आई कॉल ऑन यू। अपने सेवक को कहा, जाओ ध्यान करो, जब तक मैं न बुलाऊं तब तक आना मत। और ध्यान में बैठे बैठे उन्होंने वे महासमाधि में चले गए। तो ये ध्यान सिद्ध थे। ज्ञान योग भी उतने बड़े थे। भक्ति योगी हम समझते हैं कि स्वामी विवेकानंद में भक्ति नहीं, पर उन्होंने जो रामकृष्ण आरती लिखी, वो किताब आप पढ़े तब लगेगा। और उनकी भक्ति योग की जो किताब है, और प्रेम योग, दोनों, रिलीजन ऑफ लव एंड भक्ति योग है, दोनों किताबें पढ़ने लायक, उसमें लगेगा भक्ति की कितनी बड़ी सुंदर बातें उन्होंने कही। तो बेसिकली उन्होंने कहा था, आई एम ए ज्ञानी विदाउट, बट इनसाइड आई एम ए भक्ता। तो भक्ति योग भी उसी प्रकार से। और कर्म योगी तो उन्होंने 39 वर्ष की उम्र में जब उन्होंने कहा कि मैं अब जाना चाहता हूं, उनके जाने के कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि मैं अभी अपना शरीर छोड़ना चाहता हूं। तो किसी ने पूछा, वाई सो अर्ली, इतना जल्दी आप क्यों जाना चाहते हैं, अभी तो 39 वर्ष की उम्र है। उन्होंने कहा, आई हैव डन इनफ फॉर नेक्स्ट 1500 ईयर्स। ऐसे नहीं जा रहा हूं, आगामी 1500 साल का काम करके जा रहा हूं। आगामी 1500 साल के लिए मैं तुमको संदेश दे रहा हूं। जो संदेश मैंने दिया है उसको कार्यान्वित करने में 1500 साल लगेंगे। ये करके मैं जा रहा हूं, ऐसे नहीं जा रहा हूं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आधुनिक मानव के लिए जो मन की शांति प्राप्त करने के लिए स्वामी विवेकानंद जो समन्वयात्मक योग, और यूथ को तो मैं इतना कहता हूं, युवा वर्ग को, कि उसके लिए तो उनको मालूम है कि वो लोग अपनी रील में देखने में इतने व्यस्त हैं कि समय निकालेंगे नहीं योग के लिए। तो मैं 555 का फॉर्मूला देता हूं, भैया 555 करो अंततः। क्या है 55? 5 मिनट्स ऑफ प्रेयर भक्ति योग, 5 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन राज योग, एंड 5 मिनट्स ऑफ इंस्पिरेशनल रीडिंग ज्ञान योग। सुबह शाम 555 15 मिनट 30 मिनट, 1% टाइम आपको निकालना है बस 24 घंटे से। 86,400 सेकंड में से ओनली 864 सेकंड, 14.5 मिनट निकालना है। और सारे दिन अपना स्वधर्म करो, अनासक्तिपूर्ण करो, वो है कर्मयोग। ये 4 योगों का समन्वय करने से हमें दैनिक जीवन में शांति मिलेगी, शाश्वत सुख, शाश्वत शांति का मार्ग भी प्रशस्त हो जाएगा। मैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया, और आप सभी जो लोग सुन रहे हैं सब लोगों को मैं नमस्कार करता हूँ। हम ईश्वर से प्रार्थना यही करें कि वे हमें शक्ति प्रदान करें, ताकि इन 4 योगों का समन्वय अपने जीवन में करके हम अपना मानव जीवन सार्थक कर सकें। हरिओम तत्सत। हरिओम स्वामी जी, बहुत ही अच्छा लगा आपको सुन के, और आपने इतनी अच्छी तरह बताया 4 योगों का समन्वय करके कैसे जिया जाए। और 5 मिनट्स का फॉर्मूला तो लाइक मुझे लगता है मैं आज शाम से ही शुरू कर दूंगी। थोड़ा तो करती हूँ पर अभी रेगुलर बन जाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर डिवाइन knowledge sharing with us. Let's move on with our program. हमारे नेक्स्ट जो स्पीकर है श्री आचार्य बिरजू महाराज जी, उनका टॉपिक भी बहुत ही सुंदर टॉपिक उन्होंने लिया है। टॉपिक है योगा, पाथ्स ऑफ योगा एंड वे ऑफ इंटीग्रेशन। Paths of yoga and ways of integration. Let me just introduce आचार्य जी के बारे में आपको थोड़ा बताऊं। आचार्य जी बिरजू महाराज is a yoga mentor, योगा चिकित्सा आचार्य है, काउंसलर है। He is a founder of IAYT Indian Foundation. He is the director of Department of Yognosis, BMC Medical College के भी वो डायरेक्टर है। He is a direct disciple of पूज्य स्वामी श्री मनुवर्य जी महाराज, and with over 37 years of experience, he is renowned yoga therapist, yoga teacher and therapist. वो मेरे भी गुरु जी है।
He's trained under Kaivalya Dham, Lonavala, Yog Sadhana Ashram, Ahmedabad. He has worked with prestigious institutions like Apollo, IIM, NID, and Heart Care Center. His contribution to yoga education and research and publications have earned him a widespread recognition, including the Gujarat Government Best Yoga Therapist Award in 2004. He was a past president with the Indian Yoga Association Gujarat chapter, and right now he is a senior most advisor for the Gujarat chapter. Thank you, sir. We welcome you. सर आप म्यूट पे हो. Thank you very much, Bhakti. Bhakti name suggests that you are one of the you are on one of the path of yoga, right? So so I took the subject. Yes, I took the subject, the paths of yoga and ways of integration. See why? Because we have different paths of yoga, right? We know Raj Yoga, Karma Yoga, Bhakti Yoga, Gyan Yoga, Jap Yoga, Tantra Yoga, Mantra Yoga, right? We have various types of yoga, right? But what we have to do is, we have to understand that what yoga actually is, right? There can be a different path to reach Bombay, right? There are many ways to reach Bombay. You can go by this road or that road, yeah, or by flight, yeah, by train. So there are many paths. Actually, ultimately, what you have to do is you have to reach to the Bombay station, right? So what is the goal of yoga? The antim goal of yoga is moksha, right? So there can be different ways to attain it, right? But the ultimate goal of yoga is moksha only, right? Then our yogis have given us 108 ways of attaining the goal of yoga, right? 108 ways. There are, yes, Bhakti Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga, Laya Yoga, Mantra Yoga, Tantra Yoga, Jap Yoga, Ajapa Yoga. There are many yoga, right? But these are the ways through which we have to attain the moksha. आज अगर भक्ति ट्रेन में बॉम्बे पहुंचती है और मैं फ्लाइट में बॉम्बे पहुंचता हूं, तो मेरे पहुंचने में और भक्ति के पहुंचने में क्या डिफरेंस रहा? बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा. मैं भी वहीं पहुंचूंगा, वो भी वहीं पहुंचेंगे, राइट? समय तो यहाँ पर चेक इन में 1.5 घंटा, वहां पर चेकआउट में 1.5 घंटा, वो सब होके सब लगभग सेम हो जाता है. पर कहने का अर्थ ये है कि अंतिम लक्ष्य कोई जल्दी पा लेता है. अगर मेरी बात समझो कि अगर आपकी ट्रेन जो है, अभी बुलेट ट्रेन आ जाएगी तो प्लेन से भी फास्ट पहुंच जाएगी. क्योंकि प्लेन में जाने में आपको 5 घंटे लगेंगे, 2 घंटे इसके, 2 घंटे वो और 1 घंटा ये, और वो ट्रेन आपको 3.5 घंटे में पहुंचा देगी, राइट? सो समय का भी हम इतना ना गिने, क्योंकि योग जो है वो समय से भी पार है. हम योग को समय के साथ जोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि योग तो हम हजारों लाखों सालों से हम करते आए हैं, और ये हमारी एक जर्नी चालू है. हम एक जर्नी में हैं, राइट? हम आगे के संस्कार को हम लेके आते हैं और उन्हीं संस्कार को हम इस जन्म में एग्जीक्यूट करते हैं. तो आगे के कितने पड़ाव आपने पार कर चुके हैं आप, उस प्रकार आपका डेस्टिनेशन, आपका मोक्ष आपको मिलेगा. पर हर एक पाथ में इतना पोटेंशियल है कि आपको वो मोक्ष दिलाकर ही रहता है, राइट? चल के जाओ, गाड़ी में जाओ, फ्लाइट में जाओ, बस में जाओ, कैसे भी जाओ, वो पहुंचाएगा. अब वेज ऑफ योगा में भी इंटीग्रेशन कैसे किया जा सकता है? क्यों? क्योंकि उसका इंटीग्रेशन करने से हमें राजयोग प्राप्त होता है. राजयोग इज द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल योगा, इसीलिए उसको राजयोग बोलते हैं. एक राजा के पास, सब गांव राजा के पास होते हैं,
सब रास्ते गांव सब राजा के पास होता है। तो ये सब वेज राजयोग के पास पड़े हैं, और जो राजयोगी है उसके पास ये सब वेज एक्सप्लोर करने का अनुभव भी है। हजारों सालों से वो अनुभव करते भी आया है, पीढ़ी दर पीढ़ी, है ना। अपने अगले जन्मों से भी वो अनुभव प्राप्त करता आया है। तो वो अनुभव के आधार पर वो आज यहाँ कहाँ खड़ा है, वहां से वो आगे बढ़ेगा। तो इंटीग्रेट कैसे करते करते हैं हम, तो ये इंटीग्रेशन का एक एग्जांपल देता हूं मैं। ये इंटीग्रेशन कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था, कैसे इंटीग्रेट करना है, कैसे अनेक पाथों को एक करना है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अर्जुन को ज्ञान योग देना शुरू किया कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, है ना। माँ कर्म फल हेतुर्भु माँ कर्म अति कर्मण्ये। तो ना तो तेरा कर्म में अधिकार है, ना तो इसके फल में। जो भी कराता हूँ मैं कराता हूँ, तू क्यों अपने में करता है। तो एक ज्ञान प्राप्त हुआ। तो अर्जुन को ज्ञान प्राप्त हुआ, इसलिए उसका विषाद कम हुआ, उसकी द्विधा कम हुई, उसका कंफ्यूजन कम हुआ। तब वो अपने कर्मों में लगा। तो ज्ञान आने से वो कर्म में लगा। जब कर्म में लगा तब उसको पता चला कि कृष्ण भगवान जो बोल रहे थे वो बहुत सही बात है, और वही मेरे परम गुरु है। तो उनके प्रति उसको भक्ति आई, और फिर उन्होंने जो कहा वो अर्जुन ने किया। तो अर्जुन ने युद्ध जीतकर राज्य प्राप्त किया। तो ये महाभारत का जो आप जो पूरा एक कहानी जो वेद व्यास जी ने बताई है, इसको कहानी बोले या उसका इसकी रजूआत बोले, तो वेद व्यास जी ने ये हमें सभी योगों को ध्यान में रखते हुए बताई है कि सबसे पहले तो हमारे जीवन में हम जो जब जन्म लेते हैं ना, तब हम सब हमारी सब पिछली मेमोरियां भूल चुके होते हैं। अब हमें नए सिरे से नया सब कुछ सीखना है। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, तो एक गुरु चाहिए जो आपको ज्ञान देता है, राइट। गुरु मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, तो तुम्हारे जो पाथ में जो अवरोध थे, वो अवरोध के बिना आप अपने कर्मयोग के पाथ में आगे आगे चल पाओगे। जब कर्मयोग के पाथ में आगे चल पाओगे तो आपके अंदर अपने आप भक्ति आ जाएगी। और जब ये तीनों का समन्वय हो जाएगा तो अंतिम जो है राजयोग प्राप्ति हो जाएगी। तो ये इस तरह से पूरा साइंस हमें समझाया गया है, और कोई अलग नहीं है, कोई जीवात्मा अलग नहीं है। मैं, भक्ति, शैलेश जी या राजीव जी, सब हम सब एक ही जीनोम से बने, राइट। एक ही ईश्वर है हम, और वो ईश्वर की गति भी एक है। हमें क्या करना है, सभी ईश्वर को एक समान देखना है, और उन ईश्वरों को अपने एक दूसरे के साथ बात करके हमारा सबका एवोल्यूशन एक साथ करना है। जैसे नदियां नदियां मिलकर समंदर में आती हैं, तो समंदर में कितना शक्ति वो भरती है, जिससे आपको पता चलेगा कि समंदर के पानी से हम एनर्जी पैदा कर सकते हैं। नदियों में तो एनर्जी इतनी जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी पैदा नहीं हो रही थी, पर समंदर में से बहुत बड़ी एनर्जी पैदा हो रही। क्यों? वही सभी नदियां मिलके एक समंदर में मिली, तो उनका बहाव का एनर्जी उनके साथ मिला, राइट। इस तरह से इंसान अपने अंदर जो योग के अलग अलग पाथ हैं वो अपने आप में ढूंढे कि मेरे अंदर किस प्रकार का भक्ति योग है, मेरे अंदर किस लेवल का ज्ञान योग है। तो हर एक योग की पूर्णता करना उसका एक धर्म हो जाता है कि मुझे ज्ञान भी उतना चाहिए, मुझे कर्म भी उतना करना है, मुझे भक्त भी उतना होना है। भक्त मतलब जुड़ना, मुझे उसके साथ इतना भक्त होना है, राइट, और उससे मोक्ष प्राप्त करना है। तो ये जब ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको गुरु बताते हैं, तो ये गुरु आपके जो है वो उनको हम ऑलराउंडर बोल सकते हैं कि उन्होंने सभी पाथ को कॉन्कर किया है, और वही आपको वेज टू इंटीग्रेट बता सकते हैं। हम बहुत सारी चीजें इकट्ठा करके अच्छी अच्छी वानगियां बनाते हैं, राइट। अगर आप खाली मूंगफली खाओ तो कितना स्वाद आएगा, और उसको गुड़ के साथ मिलाकर मूंगफली पाक बना के खाओ तो कितना ज्यादा स्वाद आएगा। तो समन्वय
धाराओं का समन्वय, विज्ञान का समन्वय, योग का समन्वय, धाराओं का समन्वय, ये आपको अल्टीमेट मोक्ष की प्राप्ति कराएंगे, जो निर्वाण है और महानिर्वाण है। राइट? दो प्रकार के मोक्ष बताए हैं। एक निर्वाण है कि एक पथ से आप जाओगे तो आपको निर्वाण प्राप्त होगा, लेकिन आप सभी पथ को एक साथ जोड़ दोगे तो आपको महानिर्वाण प्राप्त होगा। सो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हम महानिर्वाण प्राप्त करें। एक पथ जो है वो पहुंचा तो देगा, लेकिन दूसरे पथ ना एक्सप्लोर होने के कारण वो महानिर्वाण की स्थिति नहीं देगा। वो शारीरिक रूप से आपको आजाद कर देगा, लेकिन आत्मिक रूप से आपको इतना आजाद नहीं कर पाएगा जितना होना चाहिए। तो धाराएं अनेक होने के बावजूद हमारा लक्ष्य एक होने से हम विभिन्न नहीं है। राइट? वस्तु साम्ये चित्त भेदात तयो विभक्त पंथा। अगर एक ही एनवायरनमेंट में चित्त अलग है तो पंथ अलग हो जाते हैं, लेकिन चित्त अलग एक ही है, चित्त एक है तो उसका पंथ अलग नहीं होता है। जैसे चित्त को पता है कि राजयोग, भक्ति योग, क्रिया योग, कर्म योग, जप योग, तप योग, ये सब एक ही योग है, एक उसके स्टेजेस है। राइट? जब इंसान शुरू करता है तो पहले तो वो आसन करके, अष्टांग योग करके वो हठ योग की प्रैक्टिस करता है, फिर वो आगे बढ़ता है, फिर वो थोड़ा ऊपर जाता है तो वो राजयोग में जाता है। राइट? इसके दरमियान उसको भक्ति भी प्राप्त होती है, उसको शक्ति भी प्राप्त होती है। उन सबका समन्वय करते हुए वो अपने महान निर्वाण की तरफ यात्रा करता है। और जो हमें शास्त्रों ने बताया है कि योग, ये योग है अलग है, ये योग अलग है, वो अलग नहीं बताया है। उन्होंने एक एक योग को इंट्रोड्यूस कराया है कि जिससे आपकी यात्रा में हर एक स्टेज पर, अब जैसे आप यहाँ से बॉम्बे जाने के लिए निकले तो क्या पहले आनंद आएगा या पहले नडियाद आएगा? राइट? तो जब नडियाद आएगा तब नडियाद आएगा, जब आनंद आएगा तब आनंद आएगा। उससे पहले आनंद नडियाद से पहले नहीं आएगा। तो आपके एक कर्म का एक संपुट होगा, आपके पास कर्म का एक जमावट होगा, शक्ति होगी, तब जाके आप नए कर्म में जाएंगे या नए एडवांस योग में जाएंगे। राइट? तो इस तरह से अष्टांग योग को स्टेप बाय स्टेप हमें जीत कर, हमें कॉन्कर करके वो स्टेशन को पार करते हुए समाधिस्थ होना है। और जब हम समाधिस्थ होते हैं तो हमारे पास रिप्रोग्रामिंग की कैपेसिटी आती है और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की वो शक्ति हम प्राप्त कर लेते हैं। और जो अल्टीमेट ट्रांसफॉर्म होता है उसी का मोक्ष होता है। सो धाराएं भले अलग हो, लक्ष्य एक है। राइट? मोक्ष, और मोक्ष की प्राप्ति के लिए योग करना है। चाहे आप आसन करो, चाहे प्राणायाम करो, आखिर में तो वो अंतिम लक्ष्य मोक्ष की तरफ ही जाने वाला है। राइट? सो हाउ टू इंटीग्रेट, ये सब समझना है योगी को कि मुझे महानिर्वाण प्राप्त करने के लिए सब कुछ चाहिए। अगर आपको अच्छी गुजराती डिश खानी है तो आपको कढ़ी भी चाहिए, चावल भी चाहिए, तो 4-5 सब्जियां भी चाहिए, कठोल भी चाहिए। राइट? पूरी भी चाहिए और हांडवा ढोकला भी चाहिए। ये सब पूरा थोड़ा थोड़ा करके आपने पूरी गुजराती डिश तैयार की और कितना आनंद मिला। तो वो महानिर्वाण ऐसा है। राइट? भले भक्ति योग से आपने मोक्ष लिया, लेकिन वो महामोक्ष, महानिर्वाण नहीं है। महानिर्वाण मतलब सब कुछ समझ के, सब कुछ एक्सप्लोर करके आपने जो प्राप्त किया, वो महानिर्वाण है। जी राइट? बिल्कुल। थैंक यू सो मच पूरी डिश भरने के लिए। जो भी हमारे पास योग की अलग अलग धाराएं हैं, हमें जब जब जिंदगी में हमें वो धारा का हमें इम्प्लीमेंट करना है तो वो लानी है हमारी जिंदगी में, और उस हिसाब से हमारी पूरी डिश भरते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। थैंक यू सो मच फॉर द इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द टॉपिक। थैंक यू गुरु जी फॉर ज्वाइनिंग अस। शैलेशी का इंट्रोडक्शन हमने दे दिया है। हमारा आज का जो टॉपिक है उसके बारे में ही थोड़ा वो बोलेंगे। शैलेशी, वेलकम अगेन। थैंक यू सो मच। कई बार मैं देखता हूँ जब भी हम कॉन्फ्रेंसेस में होते हैं या ऐसे गुरुगण, आदरणीय गुरुगण होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो विषय हमारा, धारा अनेक और योग का लक्ष्य एक, या योग एक धारा अनेक, तो वो यहाँ
अगर आप सुनते हो या नहीं सुनते हो, यहाँ सिद्ध हो रहा है ना। अलग अलग गुरुगण बैठे हैं, और आप अगर पूरा कन्वर्जेशन सुने होंगे, अगर आप जो श्रोतागण है उनकी बात है, तो इनके मुख से निकला हुआ ज्ञान भी कितना अलग अलग अलग, लेकिन बात एक ही कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि अगर आप एक स्क्रीन पे इन सबको देख लेते हैं, वहीं पे सिद्ध हो जाता है योग एक ही है और धाराएं अलग हैं। जहाँ स्वामी जी ने बहुत सुंदरता से 555 की बात की, वहां आचार्य जी ने हाँ गुजराती थाली की बात की। जहां उन्होंने समन्वय में, स्वामी जी ने कहा कि 4 प्रकार के योग हैं। ऑफ कोर्स स्वामी विवेकानंदा के शिष्य हैं। स्वामी जी ने बहुत सुंदर आज से बरसों से पहले समझा दिया कि भाई ज्ञान योग, राजयोग, हाँ कर्म योग, भक्ति योग, 4 को इकट्ठा करके समन्वय करो। वहीं आचार्य जी ने भी उससे भी थोड़ा आगे जाके अष्टांग योग की बात किया, या फिर लय योग, मंत्र योग, और भी योग की जो परंपराएं है उसके एकत्रित। मतलब मैं ये समझता हूँ कि उदाहरण अलग है, मैं ये समझता हूँ पूजनीय गुरुगण अलग है, मैं ये समझता हूँ उनके दृष्टांत अलग 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 है, बट बात तो एक ही कर रहे हैं, और वो है योग की। हाँ, जैसे अभी एक एक मुहावरा उन्होंने कहा आचार्य जी ने, मैं उसको हमेशा बोलता हूँ, मुझे कनेक्ट हो गया। नदियां कितना भी रुख बदल ले, मिलना उसे समंदर में। उत्तर मुखी, दक्षिण मुखी, नदियां कितना भी रुख बदल दें, मिलना उसे समंदर में है। मीन्स आप किसी भी योग की प्रणाली से हो, आप किसी भी पूजनीय गुरुदेव के साथ सीख रहे हो, आप योग में अष्टांग योग सीख रहे हैं, हठ योग सीख रहे हैं, जो भी कुछ सीख रहे हैं या कर रहे हैं प्रैक्टिस, मिलना तो योग के उस परम लक्ष्य तक है जिसको आचार्य जी ने कहा, हाँ परम मोक्ष की अवस्था है, और जिसको स्वामी जी ने कहा आज के युग में लोगों को क्या चाहिए। पहुंचना तो एक ही स्थान पे हमें है। हाँ, जैसे उन्होंने बताया अलग अलग रास्ते हैं बॉम्बे तक पहुंचने के, बट मेरा ये कहना है यहाँ पे, हम रास्ते पे क्यों अटके हैं? दिस इज द क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। मिलना सभी जगह सभी को समंदर में है, तो नदियों में हम क्यों अटके हैं? हम क्यों अपनी परंपरा को पकड़ के रखे हैं? सभी महान है, सभी के गुरुओं ने अपने जीवन को पूर्व बलिदान दिया है इस परंपरा को शक्तिशाली बनाने के लिए। परम पूज्य गुरुदेव हमेशा से कहते हैं, एक मंत्र को सिद्ध करने के लिए गुरुओं की पूरी परंपरा अपनी बलिदान देती है। एक मंत्र सोचो, यहाँ तो पतंजलि जी ने कितने सूत्र दिए, यहाँ तो हाँ गुरु गोरखनाथ ने कितने सारे अलग अलग पद्धतियां दी, यहाँ स्वामी विवेकानंद ने कितने सारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस दिए। मैं अनुरोध करता हूं सबसे कि परंपराओं में ना अटके, योग के मार्ग पे ना अटके। योग का एक जो पर्टिकुलर हिस्सा है ना, जैसे उन्होंने बताया आचार्य जी ने कि भक्ति योग से ही मोक्ष प्राप्त मिल सकता है, मिला है हजारों गुरुओं को, लेकिन वो परम मोक्ष नहीं है, वो संपूर्ण मोक्ष नहीं है, सब कुछ प्राप्त करके मिला हुआ मोक्ष नहीं है। सो मैं ये यहाँ कहना चाहूंगा कि रास्ते से हमारा जो जर्नी चल रहा है ना, उसको और आगे बढ़ाए, सभी प्रकार के योगों को सम्मान करें, सभी प्रकार के योगों का ज्ञान को अनुग्रहित करें। क्योंकि जैसे उन्होंने फिर से उन्होंने, मैं अपना कुछ पॉइंट यहाँ नहीं इसलिए रख रहा क्योंकि जब हाँ बहुत कुछ आपने समझ लिया हो ना, तो उसी समझ को थोड़ा सा एलोबरेट करना चाहिए। ऑलरेडी उन्होंने बता दिया कि भाई सब कुछ हमें थोड़ा सा समझना चाहिए, अटकना नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ कि हाँ, ये जो परंपरा है ना, उन परंपराओं में बहुत कुछ है, उसको गहराई से स्पर्श करना चाहिए। आजकल के युवाओं को, जैसे स्वामी जी ने बताया, आजकल के जो युवा है वो आसन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस रखते हैं, क्योंकि उनको शरीर को मेंटेन करना है, रोग मुक्त रखना है, एनर्जेटिक रखना है। तो कहीं ना कहीं पहला तो मार्ग पे अटके नहीं, दूसरा मैं समझाना चाहता हूं कि मार्ग की गहराइयों में उतरे। अगर आप युवा हैं तो भक्ति योग भी उतना ही जरूरी है। हाँ, क्योंकि समन्वय जब योग का होता है, तब आगे जाके वो योग की जो परम हमारी फलश्रुति है वो प्राप्त होगी।
अटकना नहीं है। दूसरा, गहराई में उतरे और फिर आप अपने दृष्टिकोण से वो उस योग के बारे में प्रकट करें। मैं तो भक्ति नहीं कर सकता, ये ये ऊपर ऊपर से भक्ति को देखने का एक दृष्टांत मुझे लगता है। कहीं ना कहीं भक्ति योग में ही उतना उतरना चाहिए। फिर स्वामी जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि सिर्फ भक्ति योग में रहोगे तो एकदम वो फकीर जैसे रहोगे। कर्म योग भी उतना ही जरूरी है, कर्म योग में भी डूबना चाहिए। सो पहला, अटकना नहीं है। दूसरा, योग की धाराओं को गहराई से समझ ले, क्योंकि हम सब नसीब वाले हैं कि इतने सारे गुरुगण यहाँ बैठे हैं। हम सब नसीब वाले हैं कि इतने सारे गुरुगण हो चुके हैं जिन्होंने प्रकाश डाला है विषयों पे। तो अगर सब कुछ तैयार मिल रहा है तो हम क्यों, अगेन गुजराती थाली पे आ जाता हूँ, तैयार थाली है और आप खा ही नहीं रहे हो, ये तो मूर्खता वाली बात होगी। तो जाएं गुरुओं के पास, उस भक्त सॉरी उस योग के मार्ग को गहराई से समझे। और तीसरा, सभी परंपराओं को सम्मान दे। सभी अपने अपने, मेरी रुचि किसी एक में हो सकती है। हाँ, मुझे शरीर को अच्छा दिखाना है तो मैं हठ योग के लिए जा सकता हूँ, अष्टांग योग की तरफ आगे आसन की ओर बढ़ सकता हूँ। लेकिन सभी को सम्मान करना चाहिए। सभी बहुत सम्माननीय है। और कहते हैं ना, हाँ, अगेन इन पतंजलि योग सूत्र, हाँ, सतो दीर्घ काला निरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि गत्वा। सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि गत्वा। जब आप सम्मान करते हैं ना, तब वो वस्तु, वो विषय तुम्हारे अंदर दृढ़ बन जाता है, पावरफुल बन जाता है। बहुत समय नहीं लूंगा आपको। हाँ, लेकिन यहाँ 3 पॉइंट मैं अलग कहना चाहता हूँ। पहला, किसी भी एक मार्ग पे रुके नहीं। दूसरा, उस मार्ग के गहराई तक उतरे। क्यों उस मार्ग को पैदा किया गया? मानवीयता के लिए। क्यों हमारे गुरुओं ने बलिदान दिया? उस मार्ग को बड़ा बनाने के लिए। और तीसरा, सभी पूजनीय है, सभी सम्माननीय है, सभी का आशीर्वाद लेते हुए चले। तो मैं समझता हूं, आचार्य जी ने जिसे कहा परम मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, और स्वामी जी ने जैसे कहा कि हाँ, योग का मतलब ये है कि हम एक 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 मानवीय चेतना से उठ के एक वैश्वीय चेतना की ओर आगे बढ़े, मिलन हो जाए। हम्म हमें योग की फलश्रुति प्राप्त करनी है। आखिर में हमें उस मोक्ष, उस वैश्विक चेतना से मिलन होना चाहिए। और उसके लिए ये 3 पॉइंट। आखिर में अंत करते हुए मैं कहूंगा, मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूं इंडियन योग एसोसिएशन गुजरात चैप्टर में। आप सब जुड़िए, आइए, और हम ये 3 पॉइंट पे गुजरात चैप्टर के साथ जुड़ते हैं, काम करते हैं, और सभी का सम्मान करते हुए उनकी उनकी धाराओं में गहराई से उतरते हुए अपने पाथ पे आगे बढ़ते हुए योग के सही लक्ष्यांत तक पहुंचे। यही हमारा सबका विजन है, यही इस कार्यक्रम का मिशन भी है। और ये मिशन हमारे रहते, इन सभी गुरुओं के रहते जीवन पर्यंत चलेगा, ये मेरा विश्वास है। और यही मेरे जीवन की सच्ची योग की भक्ति है। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके, स्पेशली स्वामी जी को सुन के, आचार्य जी को सुन के। और मैं ये गौरव अनुभव करता हूँ कि आज यहाँ ये बहुत अच्छे गुरुगण यहाँ आए हैं, और बहुत कुछ अच्छा आपको छोटे से समय में सीखने को मिला। थैंक यू सो मच। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव शैलेश जी। बहुत अच्छी तरह आपने बताया है कि हमें सब कुछ सीखना है, सब में डुबकी लगानी है और फिर आगे बढ़ना है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर नॉलेज एंड शेयरिंग ऑल द विजडम विथ अस। हमारे अगले वक्ता है विक्रम भाई मिस्त्री। हाँ, श्री विक्रम भाई मिस्त्री। वेलकम विक्रम भाई. Vikram Bhai is a yoga teacher and a trainer, and he is committed in yoga field for last 15 years. He's connected with the Shivanand Ashram Ahmedabad. He's always ready and happy to give his time and energy in the field of yoga. Currently, he is a treasurer with IYA Gujarat chapter. विक्रम भाई, हमें थोड़ा सा यही टॉपिक पे आगे थोड़ा सा उनका स्पीच रहेगी। और उनकी स्पीच का है यस, यूनिटी यूनिटी बिहाइंड ऑल डाइवर्स योगा।
Thank you. Welcome, Vikram bhai. Thank you for joining us. को अनम्यूट करना ओम पड़ेगा. ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी गुरुगणों को मेरा प्रणाम। आज का जो टॉपिक है योग एक विविधता अनेक, इसी टॉपिक के ऊपर हम जाते हैं। मैंने गुरु स्वामी जी स्वामी विवेकानंद जी का फोटो देखा और मुझे एक चीज याद आ गई स्वामी जी विवेकानंद की। एक जो वृक्ष है, वृक्ष की डालियां ब्रांचेस अलग अलग होती है। वो ब्रांचेस कहाँ से निकली? उसके मूड में से एंड थर्ड में से। उनको फोटो देख के मुझे तुरंत याद आया कि भाई योग जो है वो आत्मा का परमात्मा से मिलन करवाता है, राइट। दूसरा, जैसे सब लोगों ने बताया गुरुजनों ने कि भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, ये सब योग तो है। साथ में उसमें से निकला हुआ अपना पतंजलि सूत्र ने जो किया अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। इसके अलावा भी बहुत सारे योग हैं जो आप अपने यूट्यूब पे भी देखते हैं, ये भी करते हैं, लेकिन वो जो है सब अलग अलग जगह से आते हुए हैं। लेकिन जो सब निकला वो सब एक ही जगह से बाहर निकला हुआ है। तो अपने को जो करना है, योगी योगी तो बनना ही है, लेकिन योग जो करेंगे वो धीरे 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 उसमें आगे बढ़ते रहेंगे। शैलेश जी ने जो बताया 3 नियम, उसमें भी मैं करता हूँ कि आप योगी बने, निरोगी बने और उपयोगी बने। और इसी अंदर इंडियन योगा एसोसिएशन गुजरात चैप्टर के अंदर आप जोड़ते जाए। आप गुजरात से है, जो गुजरात के लोग सुन रहे हैं, तो गुजरात में आप जुड़े और उसको आगे बढ़ाए और आप उसका उपयोग करें। इसलिए बस ये मेरी प्रार्थना है। ज्यादा वक्त लूंगा नहीं आपका। धन्यवाद। हरिओम। हरिओम विक्रम भाई. यस, इंडियन योग एसोसिएशन बहुत ही अच्छी तरह योग को फैला रही है और दिस इज नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेड अक्रॉस द इंडिया और उनके बहुत ही प्रखर गुरु उनके साथ जुड़े हुए हैं. यू कैन गो एंड चेक आउट हमारी वेबसाइट पे, तो आपको डिटेल में सब पता चलेगा. उनके सब स्टेट के चैप्टर है, जैसे कि गुजरात चैप्टर से हम जुड़े हुए हैं और हम सालों से हमारी सेवा थोड़ी बहुत टाइम और हमारी सेवा दे रहे हैं. Thank you very much. Our next speaker is Miss Pauli Baviskar, and her topic is various techniques of yoga. Let me introduce Mauli. Mauli Baviskar is a leading expert in integrative wellness, internationally certified as a yoga therapist, sound healing practitioner, and a pregnancy coach. With 26 years of personal practice and 15 plus years of therapeutic practice in teaching yoga and serving yoga. As a founder of Damru Yoga and Sound Therapy Center and a vice president of the Indian Yoga Association Gujarat chapter, Mauli's impact spans globally in person and digital platforms. Through the Damru Foundation, her non-profit initiative, Mauli empowers individuals to overcome chronic health issues through a harmonious blend of yoga, sound healing, and traditional therapies. Welcome, Mauli. नमस्ते नमस्ते एवरीबॉडी। नमस्ते. आज गुरुजनों को सुन के एक रीअलाइनमेंट का अनुभव होता है, पर मेरा टॉपिक आज है वेरियस टेक्निक्स ऑफ योगा और वो जानबूझ के ऐसा टॉपिक मैंने लिया है क्योंकि मुझे पता था कि जब गुरुजन बताएंगे बहुत सुंदर बातें हैं पर बहुत बड़ी बड़ी बातें, गोल मोक्षा जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये तो अचीव ही नहीं कर पाएंगे, कुछ बहुत दूर कोई चीज है, कैसे इसको प्राप्त करेंगे या करना भी है कि नहीं। तो हम स्पेशली जो अर्बन एरियाज में है और जो यूथ के साथ कनेक्टेड है, तो ऐसा नहीं है कि वो समझते नहीं है, बट उनको एक रास्ता, एक चैनलाइजेशन, एनर्जी बहुत है पर चैनलाइजेशन चाहिए। तो आज मेरा काम यहाँ ये है कि
हाँ, ये बातें सब बहुत अच्छी है, पर कैसे करें? टेक्निक्स क्या है? और मैं मानती हूँ कि लक्ष्य चाहे कितना बड़ा हो, शुरू बहुत बेबी स्टेप्स से करना चाहिए जो हम कर पाए। तो जैसे अगर यंगस्टर्स को देखे, हम बात किए भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग। भक्ति है, पर उनका कैसा है कि किसी एक सेलिब्रिटी का फैन फॉलोइंग है, इतने उसमें लीन है वो लोग कि भक्ति पता है उनको, बस चैनल करना है कि आसक्ति और निरासक्ति का फर्क, श्रेयस और प्रेयस में क्या अंतर है, ये चैनलाइज अगर हम कर पाए। आजकल बहुत बातें होती है, मैनिफेस्टेशन, एफर्मेशंस, तो ये क्या है? योग संकल्प जो हम लेते हैं, हर एक कार्य के पहले हम संकल्प सिद्धि कर लिए एक सात्विक संकल्प लेते हैं। अब मैनिफेस्टेशन थोड़ा कभी राजसिक भी हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि बच्चों को पता नहीं है, वो जानने अनजाने में कर रहे हैं, पर शायद उनको गाइडेंस की जरूरत है। और एक तामसिक या राजसिक या राग द्वेष के जो दायरे हैं उसमें से बाहर निकाल के सात्विकता की ओर अगर ले जाए, तो आज का जनरेशन इतना सक्षम है। तो मैं बहुत सिंप्लीफाई करती हूँ, मुझे पता है कि योगा थेरेपी का जो मेरा काम है, ये योग का गोल नहीं है, ये तो योग का साइड इफेक्ट है, बट इसकी जरूरत भी है। और ये जब होगा तो एक फाउंडेशन क्रिएट होता है। और बहुत बार मैंने देखा है कि बहुत इंटेलेक्चुअल्स आए अहमदाबाद से या अलग अलग जगहों से, डॉक्टर्स है, साइंटिस्ट है, वो आते हैं, श्रद्धा का लेवल कम होता है और आसन और वेलनेस की तरफ उनका झुकाव ज्यादा होता है। वहीं से शुरू करते हैं, जहां से उनका झुकाव है वहीं से शुरू करके करके, जैसे आचार्य जी ने कहा कि एक अगर हमारा जर्नी है, तो जो सीक्वेंस में डेस्टिनेशन आएंगे वही सीक्वेंस में आएंगे, लेकिन उनको वहां पे अगर जब पहुंचते हैं तो एक बड़ा सा दायरा खुलता है, और हम ये जो बातें कर रहे हैं वो उनको कनेक्ट कर पाते हैं। तो मैं मानती हूँ कि बेबी बेबी स्टेप्स लेके करना चाहिए। अगर वो अभी फिटनेस में है, मैराथन दौड़ रहे हैं, कुछ वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, शरीर का तंदुरुस्त होना बहुत अच्छा है। फिर उनको आसन की तरफ जब गाइड करते हैं तो उनको फर्क नजर आता है कि व्यायाम क्या है, आसन क्या है और वर्कआउट क्या है। तो इसका फर्क वो एक्सपीरियंशियली समझते हैं। और उसके साथ जब हम ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस को जोड़ लेते हैं, और जाने मैं जानबूझ के छोटे छोटे वर्ड्स यूज कर रही हूँ, प्राणायाम की जगह ब्रीदिंग प्रैक्टिस, ये अच्छी बात है, गलत बात है, वो बाद की बात है, बट एटलीस्ट पहले बच्चे कनेक्ट करेंगे, यूथ से कनेक्ट करेंगे, और फिर उनको पता चलता है कि अच्छा, ये ब्रेथ वर्क और प्राणायाम, उसमें भी सूक्ष्म फर्क है, और करते करते समझ आता है। तो ये टूल्स है, ये टेक्निक्स है, आप शरीर से चालू करें, अपने श्वास से चालू करें, सीधा मेडिटेशन। अभी किसी गुरुजन ने बताया कि सीधा 8-10 घंटे स्वामी जी बता रहे थे, और फिर सीधा मेंटल हॉस्पिटल पहुंच गए। इस ये मेडिटेशन के लिए एक पूर्व तैयारी की जरूरत है, मन की एक अवस्था की जरूरत है, उसके लिए बच्चों को, यूथ को, प्रेग्नेंट वुमेन को हम तैयार करते हैं विद छोटे 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 जर्नलिंग, जो आज मॉडर्न वर्ड हम यूज करते हैं। बट जब हम अभ्यास और ज्ञान योग की बात करते हैं, तब भी ये सब चीजें आती है। सेल्फ रिफ्लेक्शन की जो बात आती है, वो स्वाध्याय बताया गया है, शास्त्रों का अध्ययन बताया गया है, पर उसको हम थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके अगर हमारे यूथ तक पहुंच पाए, तो मुझे लगता है कि एवरी जनरेशन हैज 100 मिलियन न्यूरॉन्स मोर देन अस। तो उनका कैपेसिटी हमसे ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, बस चैनल करने का जरूरत है। कुछ है बच्चे जो ऑटोमेटिकली भक्ति प्रधान है, इमोशनली इंक्लिनेशन उनका ज्यादा है, तो उनको जप योग के रास्ते से लेके जाए। कुछ है जो बहुत साइंटिफिक रिगर के है, तो उनको फ्रीक्वेंसी समझाए, मैथमेटिक्स समझाए, साउंड समझाए, नाद योग समझाए। तो सिंप्लीफाई करके सिखाना, और फिर उनको धीरे धीरे विद सपोर्ट लेके जाना, फिर गगन में छोड़ देना, फिर वो उड़ान भरेंगे। तो ये मेरा मानना है कि हाँ, लक्ष्य ऐसे लगता है कि बहुत ऊपर कोई अनरीचेबल है, पर ऐसा है नहीं। वी जस्ट ब्रिंग इट डाउन फॉर द यूथ टुडे एंड मेक इट रीचेबल फॉर एवरीबडी। और ये छोटे छोटे स्टेप्स, जब जैसे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कंपाउंडिंग इफेक्ट की बात करते हैं, दिस कंपाउंड्स। और ये धाराएं जहां से भी ऐसा, आजकल उसको क्या कहते हैं,
स्पिरिचुअल विंडो शॉपिंग है, ऐसा भी कुछ वर्ड है, याद नहीं आ रहा है, करते हैं बच्चे। तो हम कभी कभी बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, बट इट्स ओके, लेट देम एक्सप्लोर। बट जब तक वो एक्सपीरियंशियल उनका हो जाएगा, फिर वो ऑटोमेटिक एक ठहराव आ जाता है। और ये मैंने खुद भी देखा है अपने प्रैक्टिस में लोगों को सिखाते हुए, कि दे सेटल इन, जहाँ पे कनेक्ट हो जाते हैं। और ये कनेक्ट होना यही योग है। फिर तो सबका एक जर्नी है जो सबका ही अलग है, और वो करते हैं, बस उनको चैनलाइज करना है, ये मेरा मानना है। सो आई होप दिस रीचेस टू मोर पीपल। थैंक यू फॉर थैंक यू। थैंक यू सो मच, बहुत ही सुंदर समझाया। आई थिंक लेमन लैंग्वेज में आपने बहुत ही अच्छी तरह काफी कुछ समझा दिया है। छोटे छोटे स्टेप लेने हैं, और जिसको जो अच्छा लगता है वो उसको सरलता से उसको करने देना है। और धीरे धीरे टू गो ऑन फर्स्ट फ्लोर वी हैव टू टेक अ फर्स्ट स्टेप, राइट? फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर अगर 10 स्टेप से तो बाद में आप फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचोगे। तो बहुत ही सुंदर आपने बताया। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस स्ट्रेटेजी। Okay, now with us we have Rajiv ji, and he is going to give a vote of thanks for this wonderful session we had today. And once again, I thank you everybody for joining us. Indian Yoga Association Gujarat chapter की तरफ से मैं मेरा धन्यवाद स्वीकार करिए, नमस्ते स्वीकार करिए। और आई हैंड ओवर टू राजीव जी। राजीव जी के बारे में भी थोड़ा मैं बहुत बताई देती हूँ। ओके, हमें यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि श्री राजीव कुमार मिश्रा पिछले 21 साल से मानवतावादी सेवाकीय संस्था प्रोजेक्ट लाइफ से जुड़े हुए हैं, जो राजकोट में है, और वो योग शिक्षक है उस संस्था में। वो इंडियन योग एसोसिएशन गुजरात चैप्टर के सेक्रेटरी है, तथा उन्होंने गुजरात, विशेषकर सौराष्ट्र क्षेत्र में अनेक योग शिविरों का सफल से आयोजन किया है। अपने समर्पित प्रयासों के माध्यम से उन्होंने योग, स्वास्थ्य और समग्र कल्याण के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच राजीव जी। I'm just handing over to you. सभी को मेरा प्रणाम। जो भी गुरुजन आज उपस्थित हैं, तो उन सभी को मैं वंदन करता हूँ। इंडियन योग एसोसिएशन गुजरात चैप्टर की स्थापना, जैसा कि मित्तल बहन ने बताया, 2019 में अहमदाबाद में आचार्य श्री बिरजू महाराज जी के निवास स्थान पर की गई थी। और आज 2026 है, हमने 6 वर्ष जो पूरे किए, उसमें जितने भी हमारे इंडियन योग एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं, तो सबसे पहले तो मैं उनका हृदय से, अंतःकरण से आभार मानता हूँ कि जिनकी वजह से आज ये हम सफलतापूर्वक 6 वर्ष पूरे कर चुके हैं, और ये हम 7वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। मैं आभार मानना चाहूँगा सबसे पहले शैलेश जी राठौर जी का, कि जिन्होंने इस कार्यक्रम को करने की एक रूपरेखा हम लोगों के सामने प्रस्तुत की, और जो विषय रखा, ये विषय भी इनकी ही देन है। योग एक, धाराएं अनेक, एक बहुत ही नया विचार, नया सब्जेक्ट जो है, नया टॉपिक जो है लगा, मुझे थीम लगा, और फिर सभी ने इसे स्वीकार किया कि हम इसी विचारधारा के साथ, इसी थीम के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो शैलेश जी, आपका खूब खूब आभार। और जिस तरह से आपने इंडियन योग एसोसिएशन गुजरात चैप्टर को अभी तक लीड किया है, और जो भी कार्यक्रम आपके उपस्थिति में हमने की, आने वाले समय में और कार्यक्रम करते रहेंगे। हृदय से मैं आपका आभार मानता हूँ। आप काफ़ी व्यस्त रहते हैं, ये बात तो सही है, लेकिन फिर भी इस कार्यक्रम के लिए आपने समय निकाला, उसके लिए मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आभार मानता हूँ मित्तल कोटेचा शाह जी का, जो जॉइंट एग्जीक्यूटिव ट्रस्टी एंड सीईओ प्रोजेक्ट लाइफ में हैं, और सीनियर वाइस चेयरपर्सन इंडियन योग एसोसिएशन गुजरात चैप्टर की हैं। मैं इनका हृदय से आभार मानता हूँ। इनका सहयोग हमें हर समय मिलता रहता है।
और जब भी कोई कार्यक्रम का आयोजन होता है तो ये सदैव इंडियन योग एसोसिएशन गुजरात चैप्टर को पूरा सहयोग देने के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। किसी भी रूप से हो, ये सदैव तत्पर रहती हैं। और आज के इस कार्यक्रम को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए मित्तल बहन का भी मैं आभार मानता हूँ, हृदय से आभार मानता हूँ कि समय समय पर उन्होंने हमें इस कार्यक्रम को करने की प्रेरणा दी और किस तरह से कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा बनाई जाए इसके लिए उन्होंने हमें पूरा मार्गदर्शन दिया। मैडम, खूब खूब आभार आपका। हमारे बीच आज के मुख्य वक्ता स्वामी श्री निखिलेश्वरानंद जी, जो रामकृष्ण आश्रम से राजकोट से जुड़े हुए हैं, उनके प्रमुख हैं। हालांकि जब हमारी एक मीटिंग हुई थी तब मैं इनके पास मिलने गया था। मीटिंग के बाद इनकी बहुत ज़्यादा व्यस्तता रहती है, कभी ये बंगाल में होते हैं, कभी कहीं होते हैं, कभी कहीं, इनका पूरा चलता रहता है। और जब मैं इनसे मिलने गया और मैंने इतना ही कहा कि हम इंडियन योग एसोसिएशन गुजरात चैप्टर की तरफ से आए हुए हैं और इस कार्यक्रम के लिए आपको एक वक्ता के रूप में हम जो है आपका नाम चाहते हैं, तो बहुत कम समय में इन्होंने स्वीकृति दी और इन्होंने कहा कि नहीं, इतना बेहतरीन और इतना शानदार, इतना अच्छा कार्यक्रम है तो जरूर हमारी उपस्थिति रहेगी। और इन्होंने बहुत जो है जल्दी अपना जो है ये अपनी स्वीकृति दी और कार्यक्रम आने के लिए उन्होंने समय निकाला। इसके लिए मैं स्वामी जी का अंतःकरण से आभार मानता हूँ। हमारे बीच में इंडियन योग एसोसिएशन गुजरात चैप्टर के एक्स प्रेसिडेंट श्री आचार्य श्री बिरजू महाराज जी यहाँ उपस्थित हैं और वर्तमान में ये हमारे एडवाइजर भी हैं और हमारी तो इनसे कई बार बातचीत होती रहती है कि हम कैसे आगे बढ़े हैं। बहुत ही सुंदर इनका जो है विचार हमें समय समय पर मिलता रहता है। और सबसे बड़ी बात है, इस कार्यक्रम में आने की स्वीकृति जिस तरह से इन्होंने दी उसके लिए मैं आचार्य जी आपका दिल से आभार मानता हूँ। क्योंकि जब ये कार्यक्रम की रूपरेखा बनी तो मुझे भक्ति बहन के माध्यम से पता चला कि आचार्य जी भी इस कार्यक्रम में आने वाले हैं, तो बड़ी बड़ी प्रसन्नता हुई और आपने आज के इस कार्यक्रम के लिए हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और बहुत ही सुंदर विषय पर आपने जो है बहुत ही सुंदरता के साथ अपना वक्तव्य दिया। इसके लिए आपका खूब खूब आभार। जैसा कि मैंने कहा कि हमारे जो चेयरमैन जो शैलेश जी हैं, उनका सहकार, उनका साथ और सबसे बड़ी बात है कि उनके विचार कि हम आगे किस तरह से इंडियन योग एसोसिएशन को ले जाएं, इसके लिए इनका सतत मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है। शैलेश जी, आपका भी मैं हृदय से आभार मानता हूँ इस दिशा निर्देशन के लिए। हमारे बीच में जो आज की कार्यक्रम की जो पूरी संयोजक थी भक्ति बहन, ये तो भक्ति बहन जितना बेहतरीन आपने आज का संचालन किया उसके लिए ये मैं आपको आभार मानना चाहूँगा। बड़ी कुशलता के साथ आपने संचालन किया और ये भी आज ही ये निर्णय हुआ कि भक्ति बहन जो है आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगी। तो भक्ति बहन, आपका खूब खूब आभार। बहुत सुंदर तरीके से आपने पूरे कार्यक्रम का संचालन किया। विक्रम भाई, आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत ही कम समय में आपने विषय के ऊपर अपनी प्रस्तुति दी, क्योंकि जो भक्ति बहन ने मुझे कहा कि विक्रम जी को भी इस विषय पर आज बोलने का अवसर दिया जाए और विक्रम जी ने इस चीज़ को स्वीकार किया। तो विक्रम जी, आपका खूब खूब आभार, चूंकि आप तो योगी हैं और अच्छे वक्ता भी हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से आपने विषय की प्रस्तुति की, इसके लिए आपका भी अंतःकरण से खूब खूब आभार। मौली जी हमारे बीच में जो वाइस चेयरपर्सन है इंडियन योग एसोसिएशन गुजरात चैप्टर की, मौली जी पूरे कार्यक्रम के संयोजन में जो है इनका बहुत अमूल्य योगदान रहता है। कोई भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमें जब भी जरूरत पड़ी तो मुझे मौली जी का बहुत साथ और सहयोग मिला। इस पूरे कार्यक्रम के इस सुंदर आयोजन के लिए मौली जी आपका भी मैं हृदय से आभार मानता हूँ और आपने भी बहुत अच्छी तरह से अपने विषय की प्रस्तुति दी, इसके लिए भी मैं आपका दिल से आभार मानता हूँ। आज पे एक हमारी हिरल ठक्कर जिसने प्रार्थना की, चूंकि वो हमारे बीच में अभी जूम आउट हो चुकी है, तो मैं उनका भी आभार मानना चाहूँगा कि युवा पीढ़ी है और योग
के प्रचार प्रसार में इनका बहुत ही अच्छा योगदान रहा है। लेकिन कम समय में इन लोगों ने जिस तरह से यहाँ पर आकर अपनी उपस्थिति दिखाई, उसके लिए मैं हृदय से उनका आभार मानना चाहूँगा। इसके साथ ही मैं आभार मानना चाहूँगा इंडियन योग एसोसिएशन की पूरी टीम का, खास करके जिनका हमें ये टेक्निकल सहयोग प्राप्त हुआ है और जिनके सहयोग की बदौलत आज के कार्यक्रम का हम जो है फेसबुक लाइव कार्यक्रम जो है प्रसारण कर रहे हैं। तो IY टीम का मैं हृदय से आभार मानता हूं कि इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से पूरे समय तक हमारा साथ और सहयोग दिया इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। इसके साथ ही जो भी गुजरात चैप्टर के अन्य जो सदस्य हैं, जो आज के कार्यक्रम में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमसे जुड़े रहे और उन्होंने हमें सहयोग दिया, मैं उन सब का भी आभार मानना चाहूँगा। अंततः मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से इंडियन योग एसोसिएशन गुजरात चैप्टर इस कार्य को आगे बढ़ा रहा है, तो इसी योग एक धारा अनेक की विचारधारा के साथ हम सभी मिलकर आने वाले समय में और अच्छे अच्छे कार्यक्रम यहाँ पर जो है इंडियन योग एसोसिएशन गुजरात चैप्टर के प्लेटफॉर्म पर करते रहेंगे। आप सबका सहयोग, आप सबका साथ और आप सबका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता रहेगा। इसी शुभ भावना के साथ इस कार्यक्रम को हम पूर्णाहुति की तरफ ले जाना चाहेंगे। एक सर्वे भवन्तु सुखिनः इस प्रार्थना के साथ कार्यक्रम की समापन। दोनों हाथों को जोड़िए, आंखों को बंद कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। दोनों हथेलियों का आपस में रगड़ते हुए पलक बंद आंखों को लगाएं, हृदय का स्पर्श करते हुए धीरे से आंखों को खोल दें। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम यहाँ संपन्न होता है। सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार, जय गुरुदेव। जय जय गुरु।